Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my page, Science of Life with Dr. Muhammad Yousuf. Today we are going to start the thyroid gland and its hormones. And before we can start, an ayah from Holy Quran and its translation, I have selected an ayah from Surah Baqarah, ayah number 208. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة वला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो, शैतान की पैरवी न करो कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो तुम्हारा खुला वादे दुश्मन है। तो अल्लाह पाक हमें समझ दे कि दीन पूरे का पूरा दीन हमारे लिए है, मर्जी का दीन नहीं है। जो अल्लाह का हुक्म है, रसूल के तरीके हैं, उनको पूरा करना है। गलती रह जाए तो फिर तौबा है। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक दे। So we are going to talk about the thyroid gland in its hormones. Thyroid gland located here, physiological anatomy I am going to talk. It produces several hormones. Two important hormones the people commonly know, they are collectively known as thyroxine. But thyroid gland also produces another very important hormone responsible for the regulation of calcium metabolism, that is known as calcitonin. There are special cells in the thyroid, parafollicular cell or C cell, which produce the calcitonin. This hormone will be discussed along with another calcium regulating hormone, parathyroid hormone. We will discuss it there. ये वहाँ पे regulate करेंगे calcium metabolism के साथ. Here in these two lectures, we are going to discuss only the metabolic hormone. Thyroid metabolic, they are known as thyroid metabolic hormone. They are produced by follicular cells. This first hormone, calcitonin, is produced by parafollicular cells, C cells. And follicular cells produce the T3 and T4. They are amine hormone, metabolic hormone. They are derivative of amino acid tyrosine. They are known as thyroxines. Two thyroxine, T3 and T4. इसका फर्क हम अभी आगे देखते हैं. So these are the two hormones responsible. They are responsible for increased metabolism and thermogenesis, heat production and growth, etc. Function हम discuss करेंगे. That's why they are known as metabolic hormones. Now thyroid gland, briefly, the two metabolic hormones, these two hormones are regulated by pituitary TSH, or TSH itself is being regulated by the hypothalamic TRH, thyrotropin releasing hormone. ये hypothalamo hypophyseal axis regulate कर रहा है. The complete absence of these two metabolic hormone reduces the BMR, basal metabolic rate of the body, to only 40% to 50%. And if there is excessive production, the metabolic rate may increase up to 100%, 60% to 100% increase in the metabolic BMR, basal metabolic rate. That is the measure of oxygen consumption in basal condition. So the metabolism tremendously increases in the presence of these hormones, and it is tremendously reduces if these two hormones are absent. Now, briefly, physiological anatomy of thyroid gland. As you know, this is located in front of the and side of the trachea here. It is immediately below the larynx, voice box. इसके नीचे thyroid gland is located. It is not visible. Normally, it is not visible nor it is palpable, but it is located below the thyroid gland. Its weight is, normal weight is about 15 to 20 grams, and it consists of, histologically, it consists of large number of follicles, and these follicles, about diameter of these follicle is about between 100 micron to micrometer to 300 micrometer is the diameter of these follicle. आगे diagram में आ जाएगा. And these follicles are filled with its secretion.
the secretion of this is thyroglobin. That is a protein secreted by the follicular cell. So thyroglobin molecule, that is it is a glycoprotein produced by the cell. So it is follicles are filled with this, and T3 T4 are the part of T3 is डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन. टायरोसिन उसका कहीं कहीं पार्ट है, जहां जहां पे लगी हुई है वहां पे भी थायराइड हार्मोन बन जाती है. आयोडीन ऐड होती है थायरोडीन बनने के लिए, आयोडीन ऐड हो जाएगी वहीं एज. So the T3 T4 are the part of the thyroglobin, which is so follicles are lined by simple cuboidal epithelium, and thyroid gland has rich blood supply. ये one of the area where rich blood supply. There 5 times the blood supply per minute, the weight of the gram, 20 grams, usse 5 times more blood per minute is supplied. So it is richly supplied by the blood vessel. This is the diagram. That is, these are the follicles, wo diameter inka 300, and these are the cuboidal cells. They are producing thyroglobin. This is thyroglobin. यहाँ पे ये thyroglobin से filled है, colloid लिखा हुआ है. This is colloid material, thyroglobin, and T3 T4 are the part of that thyroglobin. वो टायरोसिन अलग नहीं हुई, उसी का पार्ट है इट में, और उसको काट के फिर अलग आयोडीनेटेड टायरोसिन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू T3 T4, वो फिर रिलीज होगी. सो दीज आर द ब्लड वेसल्स जिसमें प्रोड्यूस होता है. यहाँ पे इसने नहीं दिखाया हुआ पैराफॉलिकुलर सेल, वो भी यहीं मौजूद होती हैं. पैराफॉलिकुलर सेल इधर कहीं मौजूद होते हैं, सी सेल जो वो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं. So iodine is required for the formation, conversion of tyrosine into T3 T4. Iodine, how much is required? About 1 milligram of iodides per week, about 50 milligram per year, about इतनी थोड़ी आयोडीन चाहिए. बट एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड, आयोडीन जैसे क्लोरीन है हमारी, दैट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड. आयोडीन इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड. दिस विल बी आयोडाइड. And iodides, they are secreted in the urine. अगर ब्लड में हो तो iodides are very easily secreted in the urine. लेकिन हमारे ब्लड में आयोडाइड ना होने के बराबर होते हैं. एब्जॉर्ब होते हैं तो अगर वो सर्कुलेट करेंगे, किडनी में जाएंगे, they will be secreted in. Most of the iodides are secreted in the urine. होता क्या है, ब्लड जो आयोडाइड्स अगर एब्जॉर्ब हुए हैं ब्लड में, thyroid cells, they have got the special mechanism to trap this iodides. So this about 1/5 of iodine is taken up by the follicular cell by the iodine trapping mechanism. थोड़ा सा आगे हम elaborate भी करेंगे. So iodides are absorbed, और उस ज्यादातर वो thyroid follicular cell they can trap it, और बाकी urine में excrete हो जाती है. Iodine pump in the thyroid follicular cell is responsible for the trapping of these iodides. Now function, we are going to list the function of these thyroid follicular cells. यही सारे फंक्शन है, यही हमारा आज का लेक्चर है. ये कैसे है फंक्शन है आयोडीन ट्रैपिंग, ये अभी जिक्र किया है. थायराइड फॉलिकुलर सेल्स हैव गॉट द आयोडीन ट्रैपिंग मैकेनिज्म. थोड़ा सा एलेबोरेट भी करेंगे इसको. सेकंड इज दीज आयोडाइड्स आर देन ऑक्सीडाइज्ड. ये आयोडीन जो है ऑक्सीडेशन करने के बाद इट कंबाइंड विद द टायरोसिन. सो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, ये भी थायराइड फॉलिकुलर सेल का फंक्शन है. देन थायरोग्लोबिन सिक्रीशन, ये अभी हमने बात की, वो फॉलिकल सिक्रीट कर रहे हैं दैट कोलाइड मटेरियल. एंड देन ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबिन, उसका क्या मतलब है? दिस फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, दैट इज आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन. इसको ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोबिन भी कहते हैं. So then it is stored there, it secrete होके, then it has to be released. वो रिलीज कैसे होती है? The phagocytosis by the thyroid follicular cell, and then digestion and release of this. So phagocytosis of the stored thyroglobin and to release these hormones, and digestion of this thyroglobin to release T3 and T4 and release of T3. ये सारे फंक्शन है, और यहीं पे नोट कर लें all these functions, ये जो 6-7 फंक्शन हमने लिस्ट किए हैं, all these functions are dependent upon TSH, thyroid stimulating hormone, जो पिट्यूटरी से आ रही है वो इसको इंक्रीज करती है. ये जो डायग्राम ऑलमोस्ट, ये डायग्राम इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दैट, वो पिछली स्लाइड के. दैट इज आयोडीन इज बीइंग ट्रैप्ड, इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड endoplasmic reticulum is producing thyroglobin.
थायरोग्लोबिन जब रिलीज हो रहा होता है, देयर इज ऑक्सीडेशन भी यहाँ पे मौजूद है, परऑक्सीडेज उसको ऑक्सीडाइज करके, परऑक्सीडेज की वजह से दैट ऑक्सीडाइज आयोडीन इज एडेड टू टायरोसिन एंड दिस इज सिक्रीटेड हेयर, आयोडीनेशन हो जाती है ड्यूरिंग सिक्रीशन, सो इट इज स्टोर्ड देयर। इसको दोबारा लेने के लिए दिस इज देन phagocytosis or pinocytosis, and this colloid droplet is digested and T3 T4 are released and into this. तो आज ये पिछले जो फंक्शन हम पिछली स्लाइड के देखे हैं, इनमें से एक एक को जल्दी जल्दी से हम इसको एलेबोरेट कर लेते हैं। आयोडीन ट्रैपिंग, वन ऑफ द फंक्शन दैट इज आयोडीन पंप प्रेजेंट इन द बेसोलेटरल बॉर्डर्स ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स, in the basal borders of the secretory side पे नहीं, दूसरी side पे, this pump is present there, the iodine pump present in the basal borders of the follicular cells, activity of the pump, this iodide from the blood into the follicular cell, इसका काम क्या है, ट्रैप करता है। और ये कितना पावरफुल है, नॉर्मली iodine pump can concentrate the iodine 30 times the concentration in the blood, blood से 30 times concentrate ज्यादा कर सकता है, लेकिन अगर हाइपर फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो, हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड हो, देन इट कैन कंसंट्रेट अप टू 250 और 300 टाइम्स, इतना ज्यादा एक्टिव पंप हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म को हम डिस्कस करेंगे। सो दिस आयोडीन पंप इज द वेरी इंपॉर्टेंट पंप प्रेजेंट इन थायराइड सेल्स। सो TSH स्टिमुलेट्स, ये पहले मैं बता चुका हूँ, ऑल दीज फंक्शंस आर स्टिमुलेटेड बाय TSH। थायरोग्लोबिन सिक्रीशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायग्राम में देखा, फॉलिकुलर सेल्स, टिपिकल प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स एंड वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर द सिक्रीशन ऑफ द प्रोटीन थायरोग्लोबिन व्हिच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, पहले बात कर चुके हैं। एंड मॉलिक्यूलर वेट इज दिस, कितना बन गया, 3,35,000, अ बिग प्रोटीन, अ वेरी बिग प्रोटीन, 3,35,000 उसका मॉलिक्यूलर वेट है। एंड ईच मॉलिक्यूल, दिस इज अ बिग प्रोटीन, 70 टायरोसिन मॉलिक्यूल, वो बड़ा सा मॉलिक्यूल है, कहीं कहीं पे टायरोसिन अपनी नंबर पे लगा हुआ है, उसी जगह पे आयोडीनेशन हो जाती है, दैट इज आयोडीन इज एडेड टू टायरोसिन टू फॉर्म द T3 and T4. So the T3 and T4 are formed within the thyroglobin molecule. यहीं पे सिक्रीशन के वक्त आयोडीन, ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन ऐड हो जाती है। तो TSH also stimulate this function of the thyroglobin. इसको याद रखें, थायरोग्लोबिन सिक्रीशन भी TSH इंक्रीज करता है। ये हम गाइटर को डिस्कस करेंगे कि किसी डिजीज में गाइटर, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, कोलाइड गाइटर हम देखेंगे कैसे होता है। सो TSH causes more secretion of this. ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स, आयोडाइड्स ये फॉर्म है, आयोडाइड्स I माइनस साइन के क्लोराइड की तरह, दिस इज आयोडाइड, दिस हैज टू बी ऑक्सीडाइज्ड टू नेसेंट आयोडीन, दिस इज नेसेंट आयोडीन, और इट हैज टू बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू I3 माइनस साइन के साथ, दिस इज ऑक्सीडाइज फॉर्म। इस फॉर्म में, इन दो फॉर्म में आयोडीन इज एडेड टू टायरोसिन। सो ऑक्सीडेशन इज प्रोमोटेड बाय द पेरोक्सीडेज, वो डायग्राम में हमने देखा था, सिक्रीटरी बॉर्डर पे पेरोक्सीडेज इज प्रेजेंट, और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कह लें, that is also present, और इनकी मदद से ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड्स टेक्स प्लेस, और peroxidase present near the apical border, that is secretory border of the follicle, अंदर की तरफ, फॉलिकल की स्पेस की तरफ। अगर ये सिस्टम peroxidase का ब्लॉक हो जाए, ब्लॉकेज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन सिस्टम, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म, बाद लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है इस वजह से है कि ये ऑक्सीडेशन सिस्टम खराब हो जाता है। H2O2 नहीं है या peroxidase की कमी हो गई, तो देन द पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म। सो ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस भी TSH कंट्रोल कर रही है। नाउ दी बनना, थायरॉक्सिन्स का बनना, आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन, ऑर्गेनिफिकेशन को भी इसको हम कहते हैं, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोबिन, बाइंडिंग ऑफ आयोडीन विद द थायरोग्लोबिन, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोबिन भी इसको हम कह सकते हैं। ये कब होती है? जब सिक्रीट हो रहा होता है, आयोडीन इज बीइंग एडेड। आयोडीनेज एंजाइम हेल्प्स द प्रोसेस, ये इसको प्रोसेस करती है। और पहले क्या बनती है? टायरोसिन एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक आयोडीन लगेगा, डायग्राम में आ जाएगा। टायरोसिन मॉलिक्यूल है, उसमें वो फिनाइल रिंग होता है 6 कार्बन वाला, हम देखेंगे किस कार्बन पर लगती है। इस पे एक आयोडीन लगेगा, इट विल बी मोनो आयोडो टायरोसिन, MIT, आसानी के लिए MIT, मोनो आयोडो टायरोसिन, एक आयोडीन लग गया है टायरोसिन के साथ, MIT उसको बोलते हैं। देन DIT एक और लग जाता है,
वो हम देखते हैं कहाँ लगता है। देन एक MIT और एक DIT, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं। एक MIT मानो आयोडोटायरोसिन और एक डाई आयोडोटायरोसिन, दे कंबाइन करते हैं, इससे T3 बन जाती है। ट्राई आयोडोथायरोनिन इसको भी बोलते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब वो थायरोक्सिन नहीं रहा, थायरोक्सिन के दो बेंजीन रिंग आपस में मिल जाते हैं, डायग्राम में आप देखेंगे या बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। एंड अगर दो DIT मॉलिक्यूल डाई आयोडोटायरोसिन आपस में मिलते हैं तो T4 बनता है। तो ऊपर वाली को T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं और T4 को थायरोक्सिन बोलते हैं। कलेक्टिवली दोनों को थायरोक्सिन्स प्लूरल के साथ आप बोल सकते हैं ना। ये डायग्राम है, ये टायरोसिन है, टायरोसिन, ये बेंजीन रिंग और इसके साथ ये बाकी स्ट्रक्चर, और ये एक आयोडीन लगा है, दिस इज मिट मानो आयोडोटायरोसिन। एक दूसरा आयोडीन यहां लग गया, डाई आयोडोटायरोसिन। अब ये दोनों अगर मिलेंगे, ये इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, ये दो यहां लगा हुआ है, दिस इज ट्राई आयोडोथायरोनिन। यो 3 और 5 डैश वो जगह कार्बन का नंबर है। एंड अगर दो डाई आयोडो मिलेंगे तो ये दोनों रिंग मिल जाएंगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू थायरोक्सिन। डिटेल बायोकेमिस्ट्री हमारा नहीं है, जरा सा आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे बनता है बायोकेमिस्ट्री में आप। Now this thyroglobin is being secreted and this organification is taking place during the secretory process. So this thyroglobin is stored in the form of that colloid material. Thyroglobin is stored after its secretion in the thyroid follicular cell. Each molecule contains about 30 T4 and a few T3. अब कई जगह पे वो लगे हुए T3 एंटी टायरोसिन लगे हुए, कहीं MIT फॉर्म में मौजूद होगा, कहीं DIT फॉर्म में मौजूद होगा, कहीं T3 फॉर्म में मौजूद होगा, कहीं T4 में। वो लेकिन दे रिमेन द पार्ट ऑफ दैट बिग मॉलिक्यूल थायरोग्लोबिन, उसका पार्ट रहेंगे। This stored form of the thyroglobin and T3 and T4 are sufficient for 2 to 3 months नॉर्मल लोगों में। अगर थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ही और काम करना छोड़ दे, ये जो स्टोर्ड फॉर्म है 2-3 महीने के लिए काफी होती है। ये वही डायग्राम है कि जैसे गाजी कंप्रेशन, ये सिक्रीशन हो रही है, परऑक्सीडेज, H2O2 आयोडीनेशन इस वक्त हो रही है, स्टोर्ड हो रही है। अब इसको रिलीज आखिरी हम देखेंगे रिलीज कैसी होती है, रिलीज ऑफ थायरोक्सिन ये कैसे रिलीज होगी। ये स्टोर्ड फॉर्म में थायराइड फॉलिकल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में कोलाइड मटेरियल पड़ा है। फेगोसाइटोसिस, ये जो सिक्रेटरी बॉर्डर है, इसके जो सेल फॉलिकुलर सेल, दे कैन परफॉर्म फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। उसका कुछ पीस काट के खा सकते हैं। कोलाइड मटेरियल इज एनगल्फ्ड, टेकन इन, उसको खा लेते हैं। फेगोसाइटोसिस बाय द एपिकल बॉर्डर ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स, फेगोसाइटोसिस वेसिकल्स आर फॉर्म्ड। उसको आपने फेगोसाइटोसिस पढ़ा हुआ है, जब उसको एनगल्फ कर लेंगे, कुछ पीस को थायरोग्लोबिन का मॉलिक्यूल उसने अंदर ले लिया, अब उसके अंदर इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ फेगोसिटिक वेसिकल इज फॉर्म, फेगोसोम इज फॉर्म, इसका नाम फेगोसोम के, फेगोसिटिक वेसिकल के, इट हैज बीन फॉर्म। एंड फिर आपको पता है फेगोसोम के साथ सलूक क्या होता है जब सेल के अंदर आता है, इट इज अटैक्ड बाय, सराउंडेड बाय द लाइसोसोम्स इन द सेल्स digestive system of the cell. So lysosome will surround it and they will produce enzyme into it, proteolytic enzyme. वो proteolytic enzyme will cause the digestion of this thyroglobin. इसको तोड़ेंगे, peptide bond को तोड़ेंगे तो T3, T4, MIT, DIT जिस फॉर्म में भी है that will be released. So phagosomes is formed and digestion of the thyroglobin by the proteases in the lysosome and release of all this. MIT भी release हो जाएगी अगर है तो, DIT भी मौजूद होगी कुछ ना कुछ, that will be released and T3, T4 जितने जितने मालिक्यूल है they will be released. MIT, DIT तो हार्मोन नहीं है, वो तो दोबारा इस्तेमाल होंगे, आगे हम देखते हैं। T3 and T4 जब ब्लड में जाएंगे तो दे आर दी हार्मोन, और ये फंक्शन भी पहले मैंने बताया हुई, ऑल दी फंक्शन आर द फंक्शन ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल, दे आर रेगुलेटेड बाय दी TSH। तो MIT, DIT जो इधर रिलीज हो जाएंगे, दे विल बी एक्टेड अपॉन डीआयोडीनेजेस, उनसे आयोडीन रिमूव करके दोबारा इस्तेमाल हो जाएगी एंड T3, T4 ब्लड में चले जाएंगे। So that is how MIT and DIT are recycled. So that आज हमारा लेक्चर इतना ही कि हमने हार्मोन्स बनने तक का प्रोसेस थायराइड फॉलिकुलर सेल में देख लिए, एंड देन ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर we will talk about the functions of these hormone, functions of thyroid hormone, next lecture inshallah taala. Please share this to other students as well and subscribe भी कर दें
और ताकि सारे लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।